Very good morning, all the participants who have registered and are taking part in this online career counseling session being organized by Pacific University. It will be a great learning for all the 12th pass out students who wish to choose the subject or the stream in their future and going to shape a bright career. Students do get in a position of confusion. They start with the bright colors, but somehow they ended with the gray notes in their mind. They get puzzled, and such situation may not occur in your mind. For that purpose, we have organized this career counseling session for the commerce students. After completion of your 12th from commerce stream, you can either go for BCom, BCom honors, BBA event management, BBA global business management, or the applied commerce field, that is journalism and mass communication. BCom courses can further be classified into BCom honors and BCom synchronized with competitive examinations. BCom honors course is for those students who are pursuing the CA or CS. Those who wish to become chartered accountant or company secretary should go for the BCom honors course. In this course, the first year syllabus is similar to the CA Foundation or CS Foundation course. In the second year, third year syllabus is equivalent to the CA IPCC or CS Executive course. So it is quite handy for those students who wish to be CA or CS. Those students who wish to do the government job or wish to do further MBA in their career, they should go for BCom regular courses, but it should be synchronized with the preparation of competitive examination. Those courses are of 3 years. BCom generally covers the financial accounting, cost accounting, corporate accounting, management accounting, income tax, GST, Indian banking system, Indian financial system. All these subjects are having the core accountancy portion. Those students who are good at mathematics and accountancy may opt for BCom course. But those students who are good command on theory subjects, those who are conceptually clear, those who are having the good fundamentals of management, those who want to be a manager should opt for BBA course. BBA is again 3 year course divided in 6 semesters. Here at Pacific University, we are providing the preparation of competitive examinations along with the BBA program. BBA covers resource management, financial management, corporate governance, uh, strategic management, business laws, stock market, and entrepreneurship development. Means these are all the applied subjects which will enhance your ability to manage the things. आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हो, आप इंडियन कंपनीज में काम कर सकते हो, आप स्मॉल बैंक्स या नेशनलाइज्ड बैंक्स में काम कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीबीए। इसके बाद भी काफी अच्छे प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। हमारे यहाँ पैसिफिक यूनिवर्सिटी की जहां तक अगर बात करूं तो वी आर having the competitive examination cell which is providing assistance to all BCom and BBA students for the preparation of UPSC, RPSC, Bank, SSC, Railway, Common Admission Test, MAT, and CMAT. These examinations preparation is done very rigorously, and full attention is paid on it. Daily one additional class is held, and तभी ये हम कह रहे हैं कि बड़ा सपना साकार हो सकता है ऑफ गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब और गेटिंग द रेप्यूटेड जॉब। उसके लिए हम क्या कराते हैं? एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन। डेली एक एडिशनल क्लास इनसे रिलेटेड होती है, और ये आपको अगर यहाँ लें या कहीं भी लें एडमिशन, आपको इसकी प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए so that you can become employable soon after you complete your graduation, that is BCom और BBA। आप CA या CS भी ऑप्ट कर रहे हैं तो भी simultaneously you will have to do the graduation, क्योंकि CA या CS एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, उससे पहले आपको ग्रेजुएशन करना नेसेसरी है।
बीबीए की ही अगर बात करूं आगे, तो बीबीए में ही एक स्पेशलाइजेशन होता है। बीबीए जो मैंने बताया था पहले वाला बीबीए, दैट वाज द जनरल बीबीए, दैट वाज सिंक्रोनाइज्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हियर मूविंग अहेड वी हैव अनदर बीबीए, बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस, और which is commonly known as BBA in global business management. As we all know that no nation is independent, we are all interdependent nations. The international trade is booming and rising very rapidly. Even in this corona situation, when we are having conflict with China, we are having trade relations with China. तो हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है, देखिए हर साल एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। जनरली वी टीच फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश, थ्री लैंग्वेजेस आर टॉट। बिसाइड्स द नेशनल लेवल marketing or HR and finance, international marketing, HR and finance related aspects are also taught in very much detail. Export import management and its documentation, the process, all these things are taught in detail. In nutshell, it is the summarized version of MIB, that is Master of International Business. BBA में आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस का। ये एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट रहता है। इसी के लिए जैसा अगर पैसिफिक यूनिवर्सिटी, ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, लेकिन पैसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां पर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफी मिल रहा है। उसके लिए हम लोग सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाते हैं, और उसी के साथ साथ हर साल एक फॉरेन टूर भी करवाते हैं, जिसके टूर के अंदर भी इस पे 100 मार्क्स का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रहता है। स्टूडेंट्स विजिट डिफरेंट कोर्स, industries, educational institutions during their foreign visit, and no additional charges taken from the students for this foreign tour. You can see on your screen that students have visited last year Dubai, Singapore, Hong Kong, and Malaysia. And gain the practical knowledge over there. So after completion of this BBA GBM global course, you can work as export import manager, exim manager, work in any multinational companies, or you can expand your family business, taking it to the international heights. आप उदयपुर से भी जैसे मार्बल है या सोपस्टोन है, काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो दैट वे यू कैन add value to your family business considerably. You can act as a directly, you can start your career as a planner or as a country head or carrying and forwarding agent in any multinational company. Another option BBA के बारे में, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है you are quite creative, है ना, and your management skills, and you have both the creativity and the management skills, then this course is quite handy, and you can think about doing this thing because it is the upcoming career. BBA event management. Event, what is event management? Event management covers the event planning, budgeting, organizing, broadcasting, marketing, sponsorship, logistics, and its media management. देखिए इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना, उसके बाद उसके राइट्स को मीडिया को सेल करके कंसिस्टेंसी के साथ रेवेन्यू जनरेट करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। जैसे आईपीएल भी एक इवेंट है, आपका ओलंपिक्स भी एक इवेंट है, पॉलिटिकल रैलीज वो भी इवेंट है। तो इन इवेंट मैनेजमेंट में अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं, वो भी जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। कौन कौन से इवेंट्स के बारे में हम आप पढ़ते हैं अगर इवेंट मैनेजमेंट कोर्स ऑप्ट करते हैं, तो बीबीए इवेंट मैनेजमेंट। उसके अंदर देखिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स, कॉर्पोरेट फंक्शंस, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कवि सम्मेलन, रॉयल वेडिंग्स। एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, सिर्फ वेडिंग तक कन्फाइन है, नहीं, सब वेडिंग के अलावा भी सो मेनी एरियाज आर देयर which are covered under BBA event management. फैशन शोज, रिलीजियस इवेंट्स, फॉर एग्जांपल आपका कुंभ का मेला है, बहुत बड़ा इवेंट है, दैट इज आल्सो मैनेज्ड बाय नंबर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज। द अमरनाथ यात्रा, ये सब चीजें इवेंट्स है, ठीक है ना। ऑनलाइन इवेंट्स जिस तरीके बहुत बड़े बड़े चैट शोज होते हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं ना। आपने टॉक शोज देखे होंगे टीवी पर, ट्रेड फेयर्स, ट्रेड एक्सपोज, festive events, beauty contests, workshops, seminars, all these are covered under event management curriculum. So, what you can become after completion of your graduation in event management? You can become the event planner or event coordinator, the promotion manager. Promotion manager means you will publicize the event in different media channels.
whether it is electronic media, print media, or the new media. The market, you can become the marketing executive, the brand developer, the media manager, event planner, or the event coordinator. You can start your own event management company, or there are so many existing event companies where you can flourish your career as a event मैनेजर. अगर स्पेसिफिकली जो आप लोग कोर सब चार्टेड अकाउंटेंट ही बनना चाह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भी जानकारी मैं देना चाहूंगा. देखिए सीए जो मिनिमम बात करें तो मिनिमम इट टेक्स 4 इयर्स. स्टेप क्या रहती है, देखिए सीपीटी, पहले सीपीटी हुआ करता था जिसको कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते थे, आजकल इसका नाम बदल के सीए फाउंडेशन हो गया. पहले सीपीटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे. अभी 4 पेपर्स आर देयर, 2 carries descriptive and 2 carries MCQ based questions. इसके बाद सेकंड स्टेज रहती है आईपीसीसी की, जिसके अंदर जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स कहते हैं. थर्ड स्टेज रहती है सीए फाइनल की. तो मैंने बताया था ऑनर्स कोर्स. ऑनर्स कोर्स के अंदर आपका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज कवर होती है सीपीटी और आईपीसीसी की. थर्ड उसके देखिए सीपीटी क्लियर होने के बाद में आपको जैसे ही आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप जब क्लियर हो जाए, आईपीसीसी 2 ग्रुप में बटा है, सीए फाइनल भी 2 ग्रुप में बटा हुआ रहता है. तो वंस यू क्लियर योर सीए आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप, देन यू कैन गो फॉर द आर्टिकलशिप. आप आर्टिकलशिप 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है और उसके बाद आप फाइनल का एग्जाम देके कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको देखिए प्रैक्टिस कर सकते हैं कि टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज में अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड कर सकते हैं. And the package is also quite good for chartered accountant. As far as the company secretary course is concerned, its duration is again the same, 4 years. First stage is CS Foundation, second is CS Executive, third is CS Professional, final stage, and the training is also required. As I said, articleship in CS also. After CS, you can act as an assistant manager, as a legal secretary department in companies. You can act as an advisor or corporate governance manager or business development manager. So many options are there after completion of your company secretaryship course. But keep this thing in mind, along with doing this CA and CS course, you will have to clear the BCom or BBA course in order to gain the degree of CS company secretary. Because ये जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसके पहले आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है. तो आप ऐसा कोर्स चुनिए जो इसके साथ किया जा सकता है, दैट इज बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कोर्स. ठीक है. तो मूविंग अहेड, वन मोर ऑप्शन द कॉमर्स स्टूडेंट्स मे हैव, CMA, Cost and Works Accountant. Again 4 साल का रहता है. It is based on the कॉस्ट अकाउंटिंग, द प्रोडक्शन, जनरली द प्रोडक्शन यूनिट्स में आपका जॉब मिलता है. इसके अंदर ये भी 3 सीए की तरह 3 स्टेजेस में होता है. इसमें आप असिस्टेंट मैनेजर से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, कॉस्ट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर. इसी तरीके से एक लास्ट ऑप्शन आपको और बताता हूँ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. ये बहुत राइजिंग फील्ड है, आप क्योंकि अभी मीडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. 12% की ग्रोथ रेट है इस समय इंडिया के अंदर भी मीडिया इंडस्ट्री की. और हमारी जीडीपी जो अब तक 5% की रेट से ग्रो कर रही थी, उसके अंदर जब 12% की ग्रोथ वाला सेक्टर हम देखते हैं तो दिस इज क्वाइट ल्यूक्रेटिव. बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है. इसके अंदर आप चाहे बीकॉम और बीबीए के साथ में डिप्लोमा एक और कर सकते हैं जर्नलिज्म के अंदर, जो कि एक प्रैक्टिकल कोर्स रहता है. 1 साल का डिप्लोमा रहता है. अगर आप ग्रेजुएशन, अगर आपको लगता है कि यार बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए आपको, यू नीड ओनली द प्रैक्टिकल लर्निंग, देन यू कैन गो फॉर BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. व्हाट इट कवर्स एग्जैक्टली, जो होता क्या है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन. देखिए इसके अंदर 4 एरियाज कवर होते हैं: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग. अब होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखिए ये सब न्यूज चैनल जो होते हैं, टीवी न्यूज चैनल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं. आपने देखे होंगे न्यूज चैनल 24/7 रन करते हैं. तो इनको रन करने के लिए प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और इनके ब्रॉडकास्टिंग में, सभी में बहुत सारे पर्सन जो टेक्निकली स्किल्ड होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है. तो वो सब स्किल्स इस कोर्स के जरिए हम सीखते हैं. प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो जो अखबार, डेली न्यूज़पेपर्स जो हम देख रहे हैं या मैगजीन्स जो हम देख रहे हैं, उनमें जॉब्स आप
ले सकते हैं। तो इसके अंदर कवर क्या होता है, देखिए जर्नलिस्ट के अंदर जो फर्स्ट एस्पेक्ट बताया था मैंने इसका, उसमें कवर होता है डिफरेंट बीट्स के ऊपर न्यूज़ लिखना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, उसका लेआउट प्रिपरेशन करना। तो किसकी कौन सी बीट्स होती है, पॉलिटिक्स, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, क्राइम, कल्चर, बिज़नेस, स्टोरी, ऑन डिफरेंट बीट्स यू आर सपोज्ड टू डेवलप योर न्यूज़ स्टोरी। आप लोगों को उसके ऊपर न्यूज़ लिखना, उसको प्रेज़ेंट करना, दोनों तरीके से सिखाया जाता है। एडवर्टाइज़मेंट की अगर बात करें तो एडवर्टाइज़मेंट डेवलपमेंट एंड क्रिएशन बोथ आर टॉट, है ना। विजुअलाइजेशन भी सिखाया जाता है, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग ये भी सिखाया जाता है कोर्स के अंदर। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, इंटरनेट, होर्डिंग्स और इन सभी के लिए एड प्रिपरेशन करना, ब्लॉग लिखना, ये भी सिखाया जाता है। और पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बड़ी-बड़ी जो कंपनीज होती है वो पीआरओ अपॉइंट करती है। हर गवर्नमेंट के अंदर पीआरओ डिपार्टमेंट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वर्क करता है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में जनता को बताते हैं, या फिर डायरेक्टली कंपनीज के अंदर भी जो सीईओज होते हैं वो डील नहीं करते हैं, आपका पीआरओ डील करता है कोई भी कंप्लेंट्स को। तो वो आप पोजीशन में काम कर सके, हॉस्पिटल्स में, एनजीओज में, मीडिया हाउसेज में भी पीआरओ होते हैं। तो आप यू कैन वर्क एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, विच इज बेसिकली ए मैनेजरियल टास्क। आपको इस दौरान भी ये जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, जैसे पैसिफिक यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ एक बढ़िया ऑडियो वीडियो स्टूडियो बना हुआ है, जहाँ पर कि कमर्शियल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सिखाई जाती है, एडिटिंग, मिक्सिंग, वॉइस ओवर, ये सभी चीजें सिखाई जाती है। और आफ्टर दैट यू कैन गेट जॉब इन टीवी चैनल्स, एड एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और इन एनी पीआर कंपनी। So you can actually become a TV anchor or radio jockey or reporter or video journalist, photo journalist, ad visualizer, copywriter, web designer, event manager, or the media manager. So ultimately, the option need to be chosen by you. आपको चुनना है, एंड द ऑप्शन शुड बी चोजन वेरी जुडिशियसली। आपको बहुत तसल्ली के साथ ये चुनना है एज पर योर स्किल सेट, किसी प्रेशर में आए बगैर या किसी की चढ़ाई में आए बगैर। यू विल हैव टू चूज इट वेरी स्किलफुली, कंसिडरिंग योर ओन लिमिटेशंस एंड योर स्किल सेट्स, as per your skill, as per your interest and as per your potential. We better know what are our potential. हमें पता है हमारे मैथ्स कितना स्ट्रांग है, हमें पता है हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कितना स्ट्रांग है। अगर थ्योरेटिकल स्ट्रांग है बीबीए, अगर मैथ्स स्ट्रांग है बीकॉम की तरफ जाए। एंड अल्टीमेटली if you choose the option very accurately, you will achieve the success. Now the session is over for the presentation, but we will take the questions from the students. So students, please ask your questions through chat. Please ask in the form of writing. We are very much pleased to answer all your queries. Anurag sir, what we have received through chat, just I am taking one by one questions and we will try to give the answer of these questions. The Tushar Balla is telling, sir, BCA is good course after 12th. Yes, it is a very good course. If you are interested in computer, you may go in BCA also. You may opt BCA line also. No? It's a very good course. Okay. So those who want to make their career in computer, they can go directly choose the BCA line also. BCA is full form जो होता है Bachelor of Computer Applications होता है. You may choose that one. अभी मोहम्मद जीवन जी जो है उनकी तरफ से क्वेश्चन था, आई एम टेकिंग बीबीए एंड इट वाज मैनी ब्रांच, इट हैज मैनी ब्रांचेस, सो प्लीज यू कैन एक्सप्लेन। अनुराग सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस है बीबीए में, और आपने वैसे एक्सप्लेन कर लिया प्रेजेंटेशन के थ्रू, बट आप थोड़ा सा और बताएंगे। As I said, BBA, there are few options. BBA, generally the BBA general course, in which you have to do the preparation of all three aspects of management are concerned: marketing, finance, and HR. These three are covered, but there is no specialization at the beginning from the very first semester. Generally, the specialization comes in the third year of your BBA. You can opt any out of these three streams. आप तीनों में से कोई एक स्ट्रीम चुन सकते हैं, और अगर आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है डे 1 से ही, सेमेस्टर 1 से ही, तो वी आर two options are available: BBA International Business and BBA Event Management. These are providing the specialization from the very first semester. So it's clear प्रियंका, मेरे ख्याल से सॉरी मोहम्मद जीवन जी, इट्स क्लियर ना कि आपको सारा क्लियर हो गया है। आप देखिएगा कि बीबीए के 2 साल आपको कॉमन बीबीए रहेगा, तीसरे साल आपको स्पेशलाइजेशन होगा, उसमें
हो सकता है आपको फाइनेंस और मार्केटिंग जो भी आपका HR, वो आपका थर्ड ईयर में ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अनुराग सर ने बोला कि दो स्टार्टिंग में आपको पहले से डे वन से अगर आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है तो आपके पास में दो कोर्स अवेलेबल हैं, GBM ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट। आप डे वन से भी चूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद जीवन जी आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुराग सर, वो है यस प्रियंका सर। जायला का। वो शी इज आस्किंग बीकॉम और BBA विच इज बेटर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं, अगर स्कूल टीचर बनना चाह रहे हैं तो फिर आपको बीकॉम करना चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, कंपनीज में वर्क करना चाह रहे हैं, तो BBA की तरफ जाइए। और अपना खुद का एक ये तो जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से हुआ। दूसरी बात, हमारा खुद का इंटरेस्ट किस में है। अगर हमें अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर हमें बीकॉम की तरफ जाना चाहिए। हमें मैनेजमेंट में, उसका अप्लाइड अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो फिर हमें BBA की तरफ जाना चाहिए। सर आपके लिए क्वेश्चन अनुराग सर गुड्डी शर्मा का। गुड्डी शर्मा जो कह रही है कि टेल अबाउट बीकॉम, बीकॉम के बारे में कुछ बताइए सर। कि बीकॉम जो कोर्स है, बीकॉम के अंदर मेजरली 3 इयर्स का कोर्स होता है। ये 6 महीने के 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड रहता है। ठीक है ना। हर 6 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में हमारे पास 5-5 सब्जेक्ट होते हैं, मेन जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। हर बार सब्जेक्ट्स बदलते जाते हैं, एक एडवांस लेवल पर हम सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। अगर आप चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। जब पैसिफिक की अगर बात करें तो वी आर ऑल्सो ऑफरिंग द डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग अलॉन्ग विद बीकॉम। हम NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सर्टिफाइड प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं, जो बीकॉम के साथ साथ ही आप कर सकते हैं। देखिए, आप बीकॉम करें, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन और ले। जैसे डिप्लोमा जर्नलिज्म मैंने कहा, वो तो 1 साल का है। अगर आप 1 साल तक नहीं करना चाहते साथ साथ, तो आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स 2-2 महीने के भी आप कर सकते, जो कि पैसिफिक यूनिवर्सिटी और प्रोवाइड करा रही है ना। तो आप उसी के बाद आप बड़ी स्किल सेट के साथ जा पाएंगे और जॉब ग्रैब कर पाएंगे। तो बीकॉम जो आप करें, बेशक करें, 3 साल का कोर्स है। और इसके बाद जो प्लेसमेंट्स रहता है, जनरली प्राइवेट बैंक्स बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आप लोगों को रिक्रूट करने के लिए कैंपस इंटरव्यू करते हैं। और जैसे कि इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, ICICI बैंक है, ये बैंक्स विजिट करते हैं, कैंपस विजिट करते हैं और डायरेक्टली स्टूडेंट को ग्रुप डिस्कशन और उनका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर बीकॉम के बाद रिक्रूट करते हैं। तो बीकॉम BBA दोनों के बाद ये रिक्रूटमेंट पॉसिबल है। आपने, मैं और सर के साथ में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ। फ्यूचर जॉब के अंदर आप अकाउंटेंट का जॉब मिल सकता है। बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर यू कैन ज्वाइन एज अकाउंटेंट, है ना। और आगे आप अकाउंट्स के साथ में आपका बड़ा स्कोप हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटेंट इज प्लेइंग वेरी गुड रोल इन द इंडस्ट्री, है ना। तो वो भी आपको बहुत बड़े स्कोप है, वहाँ पे कोई आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। और बीकॉम अगर आपको टैली वगैरह या सॉफ्टवेयर पता है आपको अकाउंट्स के वगैरह, तो आप एज ए अकाउंटेंट भी आप अपना कोर्स चालू कर सकते हैं। आगे आप MBA भी कर सकते हैं, आप MCOM भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। तो बीकॉम के बाद बहुत सारे फ्यूचर जॉब्स खुलते हैं आपके लिए। BBA के साथ और कौन सा कोर्स कर सकते हैं जो बेस्ट है? अनुराग सर आप बताएंगे प्लीज। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, NSE का डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RSCIT, अगर आप चाहें तो RSCIT 3 महीने का होता है, छोटा सा, किसी कंप्यूटर सेंटर से वो चाहे तो वो कर सकते हैं। या केवल आप उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होता है और आपको सिर्फ एग्जाम देना होता है। प्रिपरेशन इसकी बीकॉम के साथ ही हो जाती है। देखिए, आपको जो IT स्किल्स, जो रिक्वायर्ड बेसिक IT स्किल्स होता है और E-कॉमर्स होता है, ये दोनों ही हम बीकॉम में कवर करते हैं। तो बीकॉम कोर्स को पढ़ते हुए सिर्फ आपको एक एग्जाम देना होता है। और RSCIT गवर्नमेंट जॉब की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो बेसिकली उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आप इसके साथ सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं और बीकॉम के साथ कर सकते हैं। फिर आप एड क्रिएशन एंड डेवलपमेंट का कोर्स और कर सकते हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं तो, जो जिससे आपको एक और वैल्यू एडिशन मिलेगा और बेशक आपकी अच्छी जॉब लग सकती है इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अक्षत अग्रवाल का है सर। सर आई विश टू वर्क एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ए बैंकर, सो विच इज द कोर्स आई हैव टू गो थ्रू। कौन से कोर्स के साथ जाना चाहिए मुझे? देखिए, बहुत वाजिब बात है। आप आप अभी से फोकस्ड है, बैंक में जॉब करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर बेसिकली हम जितने गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, GK, ये और कंप्यूटर,
ये तीनों चीजें डे 1 से पढ़ाई जाती है। डेली एक एडिशनल पीरियड इसका होता है और हर सेमेस्टर में इसका एडिशनल एग्जाम भी होता है। सो आप प्रिपरेशन साथ साथ हो जाती है। आप बीकॉम और बीबीए दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे आप ऑप्ट कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पर है। लेकिन केवल बीकॉम बीबीए करने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में प्रिपरेशन जरूर करनी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो कोर्स वही ऑप्ट कीजिए जो सिंक्रोनाइज्ड हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ। बीकॉम या बीबीए दोनों में से जो भी सिंक्रोनाइज्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ। हमारे यहाँ दोनों कोर्सेज सिंक्रोनाइज्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ। यू कैन गो फॉर आइदर बीकॉम और बीबीए एज पर योर लाइकिंग, एज पर योर इंटरेस्ट इन अकाउंटेंसी। आप मैनेजमेंट अच्छा, में जाना चाहते हैं और बैंकिंग भी डिटेल में दोनों में ही कवर किया जाता है। बैंकिंग एस्पेक्ट्स बीबीए में भी बैंकिंग, और बीबीए को प्राइवेट बैंक्स ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू बीकॉम। एक विनोद का फोन है, विनोद ढाका का, आपके लिए है सर, अनुराग सर। सर, कैन यू हाँ जी प्लीज सर। elaborate अबाउट कंप्यूटर कोर्स व्हिच कैन बी डन विद बीबीए? वेबसाइट डिजाइनिंग का भी आप कोर्स कर सकते हैं। आप टैली जरूर करें बीबीए के साथ में, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ सिखाते भी हैं आपको टैली, क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड से और आपको टैली एडिशनल अगर आता है तो ये आपके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन रहता है। आप अकाउंट्स में बहुत आगे बढ़ सकते हैं इफ अक्षत यू का डू एक सो। और मैसेज है। अक्षत, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीबीए प्लस एमबीए 4 ईयर कोर्स इज गुड और 3+2 इज गुड। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीबीए प्लस एमबीए 4 ईयर कोर्स इज नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको बीबीए प्लस एमबीए 4 ईयर कोर्स देता है तो वो मिसलीडिंग है। अभी यूजीसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से 3+2 ईयर ही वैलिड है। मेरा नंबर मैं आपको शेयर करता हूं। आप चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके और अपनी फर्दर क्वेरीज कभी भी बाद में सेशन के ओवर होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं। ये अनुराग सर के नंबर है 9887262020। आप इस पर कॉल करके उनसे कभी भी हेल्प ले सकते हैं। ही इज अ प्रिंसिपल इन द कॉलेज और वो हेड हैं इंस्टीट्यूट के। वो आपको पूरा गाइड करेंगे कॉमर्स में क्या क्या एवेन्यूज हैं, कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है। आप निसंकोच उससे पूछ सकते हैं कभी भी, और ही विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू। हम लोग उदयपुर में हैं और उदयपुर बहुत अच्छा सिटी है। आप कभी उदयपुर में, हमारे यहाँ सारी हॉस्टल की फैसिलिटीज वगैरह भी हैं एट वेरी चीप कॉस्ट। हमारा कॉस्ट बहुत कम है और हम लोग बहुत कम कॉस्ट पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यू मे, इफ यू वांट टू कम इन उदयपुर, यू मे जॉइन आवर कॉलेज। We will provide you the detailed literature of the BBA and the syllabus also of the BBA so that you can easily make up your mind। आपको जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बीकॉम बीबीए दोनों की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स दवे सर फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड enlightening the students with your thoughts full of knowledge, and thanks all the participants। Hopefully you have gained some clarity relating to the career which is available in the field of commerce। If you are having any doubt still lying in your mind, please feel free to contact on my number 9887262020। Thanks a lot once again। Have a wonderful day and good weekend। Thank you once again on behalf of Pacific University for your participation, and e-certificate will be provided very, 1 or 2 days on your email address. And thank you once again. Thank you very much. Now we are going to sum up this conference, this online career counseling. Thank you very much.